आर्ट गाइस, ठीक है। हर बार का इवेंट मुझे सॉरी के साथ चालू करना पड़ता है। 5 बजे का इवेंट 5:30 बजे चलेगा। चलो थैंक यू, शगुन है। आपका पेशेंस ही मुझे चलते रहने देता है। चलो सो बस इतना चाहूँगा कि आप सब थोड़ा आगे आ जाइए, ठीक है। आगे की सीट्स फिल कर दीजिए ताकि जो परफॉर्म कर रहा है उसको थोड़ा मोटिवेशन मिले, तालियां बजती रहे उसको। मेरा नाम है आकाश एंड आई एम द फाउंडर ऑफ ड्रॉपवर्ड्स। एंड ड्रॉपवर्ड्स में आज कुछ नए लोग भी जुड़े हुए हैं और काफ़ी सारे नए चेहरे आए हैं ड्रॉपवर्ड में, सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। एंड आज का इवेंट स्पेशल बस इतना है दैट कि जितने पोएट्स हैं नागपुर में उनके लिए हम एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं हमेशा से, ठीक है। 4 साल से कोशिश चल रही है। आज ड्रॉपवर्ड्स के सब्सक्राइबर्स जो है 12,000 पहुंच चुके हैं एंड आई गेस इस जनर में नागपुर का सबसे बड़ा चैनल है। सो इसीलिए मैं चाहता था कि एक स्पेशल इवेंट किया जाए। दैट्स हमने वेन्यू वगैरह थोड़ा सा सेटअप किया है जो फीडबैक आए हैं अब तक के इवेंट्स को लेकर, ठीक है। बस कुछ छोटे मोटे रूल्स मैं बताऊंगा और स्टेज फिर आप ही के हवाले सौंप दूंगा, ठीक है। आप आइए, परफॉर्म कीजिए। बस पहला रूल ये है, आने के बाद माइक यहाँ पे लगा लेना, बढ़िया आपकी पोइट्री की ऑडियो क्वालिटी बिगड़ जाएगी। सेकेंडली, परफॉर्म करने के बाद में वहाँ पे जाना है आपको, वहाँ पे सारे पोएट्स के जो है नाम है, ठीक है। कप्स के नीचे वो कप उठाना है, जिसका भी नाम पढ़ा जाएगा उसे आके परफॉर्म करना होगा। बट जैसे कि बहुत सारे लोग हमारे आने के हैं तो कुछ नाम वाले नहीं होंगे, तो आपको दूसरा कप उठाना है एंड परफॉर्म करवाना है, ठीक है। सो आज की पहले पोएट्स के साथ स्टार्ट करें। सो लेट्स गिव इट अ क्लैप फॉर सत्यानी। So college days are the best time to explore yourself and the world with the people you will remember forever. So I'm Shantani. Today I'm here to explore one of my favorite hobbies along with 2 of the favorite persons I met here in college at AIMS Nagpur and along with you all. And I'll be sharing a poem dedicated to my journey of life as a nursing student. Tick tock, tick tock, life counts down on our internal clock. People you once knew, many people you once knew, suddenly start walking by without any clue. But life and nursing college never lets you alone. New experiences as well as problems are always there in tons. Pressure from pages of assignments and care plans, bags under eyes from very short sleep spans, insipid food that are mess feeds, overdoses of books to read, aching head and back from working endlessly requires at least 5 cups of coffees daily. Aching feet from free labor of clinicals, also dealing with problems that are our personal. But along with all these evolves our love for people, and these are what makes us enough capable. These are what makes us enough capable to be steady and wise when the temperatures rise, to be compassionate and kind with our medical minds, to be helpful and nice while giving advice, to be strong, poised and eased around those hard to be pleased. These 4 years rebuilds our personality, implanting in our hearts memories unforgettable, and we emerge as professionals, sensible and dependable, ready for the responsibilities coming to knock. Tick tock, tick tock. Thank you. Hi everyone, my name is Ram. I am from Nagpur, and today I'll recite a poem. It's my tribute to my favorite city. You know, I love Mumbai. I've been to Mumbai and I've lived there. I did my graduation from there, and living there was the best experience of my life. So I'd like to share the experience with you through this poem. The title is Bombay Dreams. The city that never sleeps but keeps chasing the wonder
always on its toes, harsh summer or thunder. People are tenacious, running towards their goals, no space for fear, no time to cry. Bombay dreams are immortal, they never die. Faced many hurdles, the bomb blasts, terrorism, cruel rains. No one backs down, neither the dabbawalas nor the local trains. Courage is in our veins, wisdom in our brains. No space for fear, no time to cry. Bombay dreams are immortal, they never die. Gorgeous beauties, handsome hunks, full of ambition, energy and spunk. Waiting in long queues, giving auditions, facing rejections. The urge to make it big fuels their determination. No space for fear, no time to cry. Bombay dreams are immortal, they never die. They come from all corners in search for better lives with hope in their eyes, leaving behind children and wives. Working hard to build a city, using strength and agility. No space for fear, no time to cry. Bombay dreams are immortal, they never die. In search of prosperity, they come to the megacity, entrepreneuring against the odds, creating skyscrapers, adding beauty, inexorably working, investing capital, manifesting dream that looked impossible. No space for fear, no time to cry. Bombay dreams are immortal, they never die. Mark my words, they never die. Thank you. शेर है कि कुछ गिले शिकवे मिले सुबह मुझको सिरहाने से, कुछ गिले शिकवे मिले सुबह मुझको सिरहाने से, ज़रूर वो ख्वाबों में आया होगा कल रात किसी बहाने से। तो सबको हेलो हाय है, नमस्ते आदाब है। अथर्वदेव नाम है, थिएटर वाला हूँ, नाटक वाला हूँ, और नाटक करते करते कहीं लिखने का चस्का लग गया। तो कहानी बस ऐसी है कि सब कुछ छूट जाने के बाद बचा हुआ मैं है, सब कुछ छूट जाने के बाद बचा हुआ मैं है, मेरी कहानी अलग नहीं, बर्बाद होना तय है। तो एक शेर के साथ शुरुआत करता हूँ, फिर गज़ल सुनाऊंगा आपको कि सुलगते रिश्ते की घटा है ये कोई चांदनी भरी रात नहीं, सुलगते रिश्ते की घटा है ये कोई चांदनी भरी रात नहीं, घिर आए हैं बादल बहुत हुई कोई बरसात नहीं, सुलगते रिश्ते की घटा है ये कोई चांदनी भरी रात नहीं, घिर आए हैं बादल बहुत हुई कोई बरसात नहीं। एक रात थी कि उंगलियां उलझा कर मिटती थी शिकायतें, एक रात थी कि उंगलियां उलझा कर मिटती थी शिकायतें, एक रात है कि जुबां के बस की भी बात नहीं। गज़ल सुनाता हूँ आप लोगों को, ताज़ी ताज़ी नहीं कुछ लिखी है कि दिन सारा गुजरा है एक शाम की तैयारी में, आज शाम की तैयारी में, दिन सारा गुजरा है एक शाम की तैयारी में, और हम पर इल्ज़ाम है कि हम जिए बेकारी में। दिन सारा गुजरा है एक शाम की तैयारी में, और हम पर इल्ज़ाम है कि हम जिए बेकारी में, मगर देखो जानम कि तुम फिर ना आई, मगर देखो जानम कि तुम फिर ना आई, खैर रखना है भरोसा फिर भी वफादारी में। मगर देखो जानम कि तुम फिर ना आई, खैर रखना है भरोसा फिर भी वफादारी में। और मानो मैं भी ना मिली तो क्या करोगे कहती थी, मानो मैं भी ना मिली तो क्या करोगे कहती थी, मुझको भी मर जाऊंगा कहना पड़ता है लाचारी में। मानो मैं भी ना मिली तो क्या करोगे कहती थी, मुझको भी मर जाऊंगा कहना पड़ता है लाचारी में। और किसी को कहकर साथ रखने में क्या फ़ायदा, किसी को कहकर साथ रखने में क्या फ़ायदा, तन्हाई को भी जिया जा सकता है खुददारी में। किसी को कहकर साथ रखने से क्या फ़ायदा, तन्हाई को भी जिया जा सकता है खुददारी में। एक ही थी ज़िंदगी उसूलों पे चलने के खातिर, कि एक ही थी ज़िंदगी उसूलों पे चलने के खातिर, उसे भी गुजारा है औरों की तरफदारी में। एक ही थी ज़िंदगी उसूलों पे चलने की खातिर, उसे भी गुजारा है औरों की तरफदारी में। और गुलदस्ता दिखाकर मुझ में खंजर भी खोपा गया, गुलदस्ता दिखाकर मुझ में खंजर भी खोपा गया, और फिर ये कहा इतना चलता है यारी में। गुलदस्ता दिखाकर मुझ में खंजर भी खोपा गया, और फिर ये कहा इतना चलता है यारी में।
तो एक जितनी गज़ल का सिलसिला चला है मेरा, वो मोस्ट ऑफ दी जो है वो रास्ते में आई है, पता नहीं क्यों। मतलब रास्ते में कहीं चलते चलते तो मैं ऑफिस जा रहा था और मैंने एक कपल देखा जो हाथ में हाथ डालकर कहीं जा रहे थे। तो उस पर मैंने लिखा कि शुक्र है, क्या शुक्र है कि मैं अब तक उससे नहीं मिला, शुक्र है। हाँ, रास्ता मगर सही मिला, शुक्र है। जहाँ आदत लगी एक पत्थर जैसा दिखने की, जहाँ आदत लगी एक पत्थर जैसा दिखने की, दूसरा भी मुझको वही मिला, शुक्र है। जहाँ आदत लगी एक पत्थर जैसा दिखने की, दूसरा भी मुझको वही मिला, शुक्र है। और मुझको लगता था मुकद्दर कहीं ऊपर संवारता है, मुझको लगता था मुकद्दर कोई ऊपर संवारता है, अपने अंदर एक फरिश्ता यही मिला, शुक्र है। मुझको लगता था मुकद्दर ऊपर कोई संवारता है, अपने अंदर एक फरिश्ता यही मिला, शुक्र है। तो क्या तकलीफ़ के मांगने पर खुशियाँ कम मिली, तो क्या तकलीफ़ के मांगने पर खुशियाँ कम मिली, जो गम मिला आधा ही मिला, शुक्र है। तो क्या तकलीफ़ के खुशियाँ मांगने पर कम मिली, जो गम मिला तो आधा ही मिला, शुक्र है। और आसमां ताकने वालों को खुदा अगर मिला है, आसमां ताकने वालों को खुदा अगर मिला है, मुझ में तुझ में ही कहीं मिला, शुक्र है। तो एक आखिरी कुछ गज़ल सुनाता हूँ, उसके बाद फिर जगह लेता हूँ अपनी। तो कहा है कि अब के किसी से बिछड़े तो गिला नहीं करते। नमस्ते सर, आ जाइए, सेटल हो जाइए प्लीज़। तो कहा है कि अब के किसी से बिछड़े तो गिला नहीं करते, यही दस्तूर है दो प्रेमी मिला नहीं करते। अब के किसी से बिछड़े तो गिला नहीं करते, यही दस्तूर है दो प्रेमी मिला नहीं करते। और महबूब से चांद तारों के वादे करने वालों, महबूब से चांद तारों के वादे करने वालों, रास्तों के कुछ पत्थरों से हिला नहीं करते। महबूब से चांद तारों के वादे करने वालों, रास्तों के कुछ पत्थरों से हिला नहीं करते। ये शमा के बुझ जाने के बाद समझ आया, ये शमा के बुझ जाने के बाद समझ आया, बार बार अंधेरों में दाखिला नहीं करते। ये शमा के बुझ जाने के बाद समझ आया, बार बार अंधेरों में दाखिला नहीं करते। और कुछ एक पल में रिश्ते बिखरे पड़े मिलते हैं, कुछ एक पल में रिश्ते बिखरे पड़े मिलते हैं, ज़रूरी बात पर होठ सिला नहीं करते। कुछ एक पल में रिश्ते बिखरे पड़े मिलते हैं, ज़रूरी बात पर होठ सिला नहीं करते। और जो आता हमको काम सिवा कोई मोहब्बत के, जो आता हमको काम सिवा कोई मोहब्बत के, हम ये मिलने बिछड़ने का सिलसिला नहीं करते। जो आता हमको काम सिवा कोई मोहब्बत के, हम ये मिलने बिछड़ने का सिलसिला नहीं करते। खिल उठती थी जो आंखें देख कर बागों में तितलियाँ, खिल उठती थी जो आंखें देख कर बागों में तितलियाँ, अब कहती है बागों में फूल खिला नहीं करते। खिल उठती थी जो आंखें देख कर बागों में तितलियाँ, अब कहती है बागों में फूल खिला नहीं करते। और टकराई है चट्टानों से आंधियाँ और बरसातें बहुत, टकराई है चट्टानों से आंधियाँ और बरसातें बहुत, जो खड़े हो अपने पाँव पर कभी गिरा नहीं करते। उज्जवल, तो खैर लिखने का सिलसिला कुछ यूँ है कि ज़िंदगी ने बहुत तंग किया, ज़िंदगी ने बहुत तंग किया है। क्योंकि हम लोग आते भैया मिडिल क्लास फैमिली से, हमें पढ़ने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। लाइक मैंने पढ़ते पढ़ते कमाया भी है, और लिखना बस उसी से आया। तो सुनाता हूँ कि एक कोने में कागज़ कलम के साथ बैठता हूँ, एक कोने में कागज़ कलम के साथ बैठता हूँ, मैं रोज़ ही तो अपने अलम के साथ बैठता हूँ। शुक्रिया। एक कोने में कागज़ कलम के साथ बैठता हूँ, मैं रोज़ ही तो अपने अलम के साथ बैठता हूँ। जाने कब कहाँ ठोकर लगे कांटा चुभे,
जाने कब कहा ठोकर लगे कांटा चुभे, मैं रोज़ बीमारियों मलहम के साथ बैठता हूँ। जाने कब कहा ठोकर लगे कांटा चुभे, मैं रोज़ बीमारियों मलहम के साथ बैठता हूँ। एक मतलब और एक शेर अगला। गुलों से बात करने में वक्त बर्बाद कर लिया, गुलों से बात करने में वक्त बर्बाद कर लिया, इसी बहाने हमने महबूब को याद कर लिया। गुलों से बात करने में वक्त बर्बाद कर लिया, इसी बहाने हमने महबूब को याद कर लिया। तमाम नुस्खे आज़मा कर कोई हल न मिला, तमाम नुस्खे आज़मा कर कोई हल न मिला, तो आशिकों ने शायरी का इजाद कर लिया। शुक्रिया। गुलों से बात करने में वक्त बर्बाद कर लिया, इसी बहाने हमने महबूब को याद कर लिया। तमाम नुस्खे आज़मा कर कोई हल न मिला, तो आशिकों ने शायरी का इजाद कर लिया। हमने कितने किस्से सुनाए सारे मोहब्बत के, हमने कितने किस्से सुनाए सारे मोहब्बत के, कितने हुए बीमार मारे मोहब्बत के। हमने कितने किस्से सुनाए सारे मोहब्बत के, कितने हुए बीमार मारे मोहब्बत के। लैला मजनू के किस्से तो सुन लिए तुमने, लैला मजनू के किस्से तो सुन लिए तुमने, हमारी भी सुनो हम हारे मोहब्बत के। हमने कितने किस्से सुनाए सारे मोहब्बत के, कितने हुए बीमार मारे मोहब्बत के। लैला मजनू के किस्से तो सुन रखे हैं तुमने, हमारी भी सुनो हमारे मोहब्बत के। बिन तीर बिन तलवार बिना खंजर मारे गए, बिन तीर बिन तलवार बिना खंजर मारे गए, कितने होते हैं असरदार इशारे मोहब्बत के। बिन तीर बिन तलवार बिन खंजर मारे गए, कितने होते हैं असरदार इशारे मोहब्बत के। नज़रें भी मिला ले तो जन्नत नसीब हो, गौर से सुनिएगा। नज़रें भी मिला ले तो जन्नत नसीब हो, आरज़ू है खुदा वो बस मेरे करीब हो। नज़रें भी मिला ले तो जन्नत नसीब हो, आरज़ू है खुदा वो बस मेरे करीब हो। उसे मेरे साथ देखकर तो रब भी कहता है, उसे मेरे साथ देखकर तो रब भी कहता है, जितने भी अमीर हो सबके सब गरीब हो। शुक्रिया। नज़रें भी मिला ले तो जन्नत नसीब हो, आरज़ू है खुदा वो बस मेरे करीब हो। उसे मेरे साथ देखकर तो रब भी कहता है, जितने भी अमीर हो सबके सब गरीब हो। और ये लाइफ पे कुछ लिखा है कि एक वक्त था जब किताबों से अलमारी भरी थी, एक वक्त था जब किताबों से अलमारी भरी थी, आज खाली पेट से रद्दी का दुकान याद आया। एक वक्त था जब किताबों से अलमारी भरी थी, आज खाली पेट से रद्दी का दुकान याद आया। और किसी को दिल में बसाना हमसे हुआ ही नहीं, और किसी को दिल में बसाना हमसे हुआ ही नहीं, सो तेरे जाने के बाद मुझे शमशान याद आया। शुक्रिया। ये एक गज़ल के कुछ शेर हैं, मतलब और चंद शेर। इसमें मैं आपका साथ चाहूँगा, जिसका रदीफ़ है मालूम नहीं, तो वो आपको मेरे साथ में रिपीट करना है। तो पढ़ता हूँ कि रिहाई आज़ादी नज़ात है मालूम नहीं, रिहाई आज़ादी नज़ात है मालूम नहीं, मौत ज़िंदगी की रात है मालूम नहीं। शुक्रिया सर। रिहाई आज़ादी नज़ात है मालूम नहीं, मौत ज़िंदगी की रात है मालूम नहीं। बल्ब फड़फड़ा रहा है रूह चीख रही, बल्ब फड़फड़ा रहा है रूह चीख रही, क़यामत की रात है मालूम नहीं।
कल्ब फड़फड़ा रहा है, रूह चीख रही, क़यामत की रात है, मालूम नहीं, इतना मालूम है कि मौत है, इतना मालूम है कि मौत है, हयात से तल्लुकात है, मालूम नहीं, हयात माने ज़िंदगी, इतना मालूम है कि मौत है, हयात से तल्लुकात है, मालूम नहीं, नोच के जिस्म अपनी प्यास मिटाने वाले, नोच के जिस्म अपनी प्यास मिटाने वाले, तेरी क्या ही औकात है, मालूम नहीं। ये दो शेर है कि उनको देखने से पहले पूछते तो शायद हाँ कर भी देते हम, उनको देखने से पहले पूछते तो शायद हाँ कर भी देते हम, ये दिल अब उनका हो गया है, हमारा नहीं है। उनको देखने से पहले पूछते तो शायद हाँ कर भी देते हम, ये दिल अब उनका हो गया है, हमारा नहीं है। लोग कहते हैं उनकी आँखों में हम डूब जाते हैं, लोग कहते हैं उनकी आँखों में हम डूब जाते हैं, वो शादीशुदा है जनाब, अब गवारा नहीं है। तेरा मजाक है। ज़िंदगी इस तरह ज़ख़म कर रही है, ज़िंदगी इस तरह ज़ख़म कर रही है, कांटों किस तरह सितम कर रही है। ज़िंदगी इस तरह ज़ख़म कर रही है, कांटों की तरह सितम कर रही है, तितलियाँ अपनी भूख मिटाने के लिए करे भी तो क्या। लड़कियाँ ध्यान दीजिएगा। ज़िंदगी इस तरह ज़ख़म कर रही है, कांटों की तरह सितम कर रही है, तितलियाँ अपनी भूख मिटाने के लिए करे भी तो क्या, सो फूलों पे जुल्म कर रही है। आप पहुँचे होंगे, आप शुक्रिया, आप वहाँ तक पहुँचे होंगे तो बेशक बहुत ज़िंदगी इस तरह ज़ख़म कर रही है, कांटों की तरह सितम कर रही है, तितलियाँ भूख मिटाने के लिए करे भी तो क्या, सो फूलों पे जुल्म कर रही है। यार उज्जवल थोड़ी देर और रुक जाते हैं, यार उज्जवल थोड़ी देर और रुक जाते हैं, वो मेरे लिए चाय गरम कर रही है। शुक्रिया। थोड़ा वक्त है। कल रात गमों को दावत पे बुलाया गया, एक मतलब और एक शेर सुनिए। कल रात गमों को दावत पे बुलाया गया, खुश रहने का एक और तरीका निकाला गया। कल रात गमों को दावत पे बुलाया गया, खुश रहने का एक और तरीका निकाला गया, निकाल के सारे किस्से पुरानी यादें, निकाल के सारे किस्से पुरानी यादें, आँखों को आंसुओं से निकाल, आँखों से आंसुओं को निकाला गया है। लफ्ज़ों को हमने बिसात दे दी, लफ्ज़ों को हमने बिसात दे दी, उन्होंने तो हमें मात दे दी। लफ्ज़ों को हमने बिसात दे दी, उन्होंने तो हमें मात दे दी। शहर जाते वक्त झुमका दिया उसने, शहर जाते वक्त झुमका दिया उसने, लगा जैसे सारी कायनात दे दी। एक लास्ट सुनाऊँ। कोई नज़में सुनाया करे, कोई गज़लें सुनाया करे, कोई नज़में सुनाया करे, कोई गज़लें सुनाया करे, हमसे मिलने खातिर भी कोई बहाने बनाया करे। शुक्रिया, शुक्रिया सर, शुक्रिया। मेरा नाम अनुपम है और आज पहली बार टोपी पहनकर आया हूँ, इसलिए कि कुछ ख़ास दोस्त हैं, वो मुझे कहते हैं कि यार क्या है तुम्हारे साथ हम घूमते हैं तो तुम जब टोपी नहीं पहनते हो 29 के हो 35 के लगते हो। तो मैंने कहा ठीक है इस बार टोपी पहन लेते हैं। तो कैसा लग रहा हूँ, ठीक लग रहा हूँ? पहली बार पहनी है। सो ये जो अगली कविता है मैं जो पढ़ने वाला हूँ वो इसी के बारे में है।
जैसे हमारे दोस्त हमको कई चीज़ें बोलते हैं और हम सारी चीज़ों पे अमल करते हैं, कुछ पर नहीं करते, तो वैसे ही हमारे लाइफ में कभी कोई प्रेमिका होती है, ठीक है, मेरे लाइफ में भी आई है, तो वो कहती है कि ऐसा करो वैसा करो, सारी चीज़ें बताती है ना। हम भी हमारी सारी बातें उनसे शेयर करना चाहते हैं। तो ये कविता उसके बारे में है कि क्या वो ज़रूरी है। तो कहा है कि सारी बातें सिर्फ तुमसे ही करूं ऐसा ज़रूरी तो नहीं, सारी बातें सिर्फ तुमसे ही करूं ऐसा ज़रूरी तो नहीं, कुछ बातें तुम्हारे बिना भी करना ज़रूरी है। ख्यालों में तुम होती हो मान लिया, ख्यालों में तुम होती हो मान लिया, मगर लफ्ज़ ब लफ्ज़ सारी बातें कबूल करूं ऐसा ज़रूरी तो नहीं। मैं अक्सर सोचता हूं कि मुझे सब्र का मतलब तुमने ही कैसे सिखा दिया। मैं अक्सर सोचता हूं कि मुझे सब्र का मतलब तुमने ही कैसे सिखा दिया, क्योंकि रातों हमेशा तुमने ही मेरी देखी। मैं नफ़रतों की रुस्मानियों में खोया रहा, मैं नफ़रतों की रुस्मानियों में खोया रहा, और तुमने हमेशा तारीफ़ें देखी। क्योंकि मैंने तो कहानियों में मसरूफ़ रहकर हर रंग में तुम्हें देखा है, मैंने तो कहानियों में मसरूफ़ रहकर हर रंग में तुम्हें देखा है, इतना खर्च किया है दिल के हर ढंग में तुम्हें देखा है। तुम अपने आप को रहस्य की किताब मानती हो, तुम अपने आप को रहस्य की किताब मानती हो ना, मैंने 3 लफ्ज़ों में तुम्हें पूरा पढ़ लिया है। मगर ये बातें काफ़ी पुरानी है, ये बातें काफ़ी पुरानी है। अभी तो दिन कैसे गुजर जाता है खबर नहीं रहती, और रात काटे कटती नहीं। अभी तो दिन कैसे गुजर जाता है खबर नहीं रहती, और रात काटे कटती नहीं। पर दूर के तारों के ख्वाब किसे देखने हैं, दूर के तारों के ख्वाब किसे देखने हैं, यहाँ तो चांद अपना होकर भी मिलने की फुर्सत नहीं रहती। तो हम ऐसा करते हैं कि तुम किसी रेत सी बस किनारे पर रुकना, मैं समंदर सा आऊँगा तुम्हें भिगाने। तुम किसी रेत सी बस किनारे पर रुकना, मैं समंदर सा आऊँगा तुम्हें भिगाने। तुम भाषाओं की ज़ुबां होना, बस मैं अल्फाज बनकर तुम्हें गुनगुनाऊँगा। मगर तब तक मैं ख़यालों की बात नज़मों में बयां करूं ऐसा ज़रूरी तो नहीं, सारी बातें सिर्फ तुमसे ही करूं ज़रूरी तो नहीं। तो ये था। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। पीयूष, हाय एवरीवन, मेरा नाम पीयूष गाड़गे है और मैं पेशे से एक कलाकार हूँ। दिन भर चित्रों में तो वही शाम को कविताओं में और कहानियों में मैं खोया रहता हूँ। आप यूँ समझो कि चित्र बनाना मेरा जुनून है और कविताएं और कहानियाँ लिखना मेरा सुकून है। तो आज मैं शुरुआत एक कहानी से करने जा रहा हूँ और उस कहानी का शीर्षक है मेरा जनाजा। एक रोज़ मैंने खुद का जनाजा देखा। मैंने देखा एक मनुष्य शरीर जो लगभग 55-60 की उम्र का था, जिसके चेहरे पर झुर्रियाँ थी, जिसके सर के बाल पके थे या कह लो बस कुछ ही बचे थे, और उसकी बंद आंखों के नीचे काले घेरे थे, जिसे देख ऐसा लग रहा था कि इस शरीर ने जीते जी कभी नींद ली ही ना हो। और उसके काले होठों से ऐसा लग रहा था कि उसे सिगरेट की बहुत बुरी लत हो। उदास सा चेहरा था उसका और वो देखने में बिल्कुल मेरे जैसा था। वो व्यक्ति और कोई नहीं, मैं ही था। उस शरीर को कुछ लोगों की भीड़ घेर के खड़ी थी। उस भीड़ में कोई रो रहे थे तो कोई घड़ियाल को एकटक घूरे ये राह देख रहे थे कि आखिर इस जनाजे से कब उन्हें छुटकारा मिलेगा। तो वही कोई मेरे नाकामियों पर अफसोस जता रहे थे, ये कहकर कि मेहनती आदमी था पर कभी मेहनत कर ना पाया। कहना बहुत कुछ चाहता था वो दुनिया से, पर कभी कह ना पाया। सपने तो बहुत बड़े बड़े थे उसके, पर कभी उन्हें पूरा कर ना पाया। रिश्ते और नाते काफ़ी बने उसके, पर कभी वो उन्हें निभा ना पाया। सुना था कि वो एक फाइटर था, पर बेचारा खुद के खातिर कभी लड़ ना पाया। और उस भीड़ में मैंने काफ़ी लोगों को पहचानने की कोशिश की,
पर कोई भी वहाँ अपना ना मिला। ये देख मुझे निराशा तो बहुत हुई, पर शायद हो सकता है कि जीते जी मैंने किया होगा पाप कोई। फिर उदास होके मैं बैठ गया अपने मृत शरीर के पास और ये सोच रहा था कि आखिर ये कैसे हो रहा है? क्या ये कोई समय यात्रा है मेरे भविष्य की, या भगवान कोई संकेत देना चाहते हैं मुझे? फिर उदास ऐसे कई सवाल आ रहे थे मेरे मन में, पर पूछूं भी तो मैं किससे, क्योंकि मुझे कोई देखने वाला और सुनने वाला कोई था ही नहीं वहाँ। मिस्टर इंडिया बन के घूम रहा था मैं यहाँ वहाँ। कुछ देर बाद मेरे 55 किलो के बुजुर्ग शरीर को उठाने 4 लोग आए, जो मुझे उठाकर आंगन में लाए और वहाँ एक प्रक्रिया शुरू हुई, जहाँ कुछ अनजान लोग आंखों में नमी लिए मेरे शरीर को छू रहे थे। वो छू रहे थे, रो रहे थे, जीते जी शांति ना सही पर मरने के बाद मेरे शांति की दुआ मांग रहे थे। लोटा भर जल चढ़ा के वो मुझे नहला रहे थे। उतने में एक आदमी आया जिसने एक सफ़ेद लिबास लाया। वो लिबास एकदम साफ था, जो चीख चीख के मुझसे ये कह रहा था मानो कि तेरी ज़िंदगी भी ऐसी ही है, ठीक मेरे जैसी, एकदम बेरंग, एकदम सफ़ेद। वो लिबास मुझे पहनाया गया, एक आखिरी बार मुझे तैयार कराया गया। वो लिबास मुझे पहनाया गया, एक आखिरी बार मुझे तैयार कराया गया। जीते जी किसी ने कहा नहीं, पर उस वक्त ये अच्छा आदमी था ऐसा सबको बताया गया। फिर कुछ देर बाद एक लकड़ियों से बनी अर्थी पर मुझे लेटाया गया, जो महक रही थी फूलों की खुशबू से। अब वो फूल कौन से थे ये तो मुझे याद नहीं, पर इतना याद है कि वहाँ जमे कुछ लोग इकट्ठे मेरे शरीर पर फूल चढ़ा रहे थे, जिन लोगों के लिए मैं ज़िंदगी भर कुछ ना रहा, न जाने क्यों, पर आज वो भी मेरे लिए रो रहे थे। उस अर्थी को उठाने 4 कंधे आए। उनमें से अर्थी उठाने के बाद उनमें से किसी एक ने कहा, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। धीरे धीरे उस जाप की आवाज़ बढ़ती गई। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। मुझे शमशान ले जाते जाते सब लोगों के मुंह से राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, ये बात बार बार दोहराई गई और हम धीरे धीरे शमशान पहुंच गए। और आखिरकार वो अंतिम क्षण आ ही गया, जहाँ एक लड़का पानी का एक घड़ा लिए मेरे चिता के पास परिक्रमा लगा रहा था। और परिक्रमा लगाने के बाद उसने वो घड़ा नीचे पटक दिया और घुटनों के बल बैठ के ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। और वहीं से एक आदमी सामने आया, जिसने उस लड़के को हिम्मत दी और हिम्मत देते देते एक जलती हुई लकड़ी उसके हाथों में थमा दी और कहा कि आगे का काम पूरा कर। उसने उस जलती हुई लकड़ी को मेरे चिता के पास बढ़ाया और अचानक एक रूहानी सी रोशनी ने मुझे ज़ोर से खींचा और मेरी आँख खुल गई और मैंने खुद को अपने कमरे में पाया। मतलब अब तक जो भी मैं देख रहा था वो महज बस एक सपना था और मेरे पास बैठा कोई अपना था, जो मुझे पूछ रहा था कि आखिर तू इतना घबराया हुआ क्यों है। मैंने एक कांपती आवाज़ में उससे कहा कि कुछ नहीं, बस एक सपना देखा। सपना? कैसा सपना? उसने पूछा। फिर मैंने कहा एक ऐसा सपना जिसमें मैंने एक अंत देखा, एक बहुत ही नाकामयाब अंत, जिसमें ना ही मेरे अपने मेरे साथ थे और ना ही वो सपने मैं पूरे कर पाया जिसे मैं रोज़ खुली आंखों से देखता हूँ। ये सुन के मेरे साथ बैठा अपना हंसने लगा और कहा, यार कैसी बात कर रहा है, वो बस एक सपना था, एक बुरा सपना, भूल जा उसे। ये बात कह के मेरा अपना वहाँ से चला गया। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि ये बस एक सपना था, पर इस सपने ने मुझे एक सच्ची घटना की झलक दिखाई, जो घटित हुई तो नहीं है पर हो सकती है। ये घटित हो सकती है अगर मैं ज़िंदगी बिना अपने सपनों के लिए मेहनत किए, बिना लोगों को अपनी बात कहे, यूं ही डरे सहमे जीते रहा तो ये सपना सच हो सकता है। दोस्तों, कहते हैं
कि सपनों द्वारा ऊपर वाला काफ़ी कुछ कहता है आपसे, आपको अच्छे बुरे का इशारा देता है। और मुझे मेरा इशारा मिल गया और तब से मैं ज़िंदगी और खुल के जीने लगा हूँ, अपने सपनों के लिए और भी ज़्यादा मेहनत करने लगा हूँ, अपनी हर एक बात बेखौफ होकर लोगों के सामने रखने लगा हूँ। क्योंकि मैं नहीं चाहता अंतिम समय में क्योंकि मैं नहीं चाहता अंतिम समय में मेरा वो उदास सा चेहरा, आँखों के नीचे वो काले घेरे, काले होठ, ये सारी चीज़ें मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ तो बस एक बड़ी वाली मुस्कान जो बता सके मेरी ज़िंदगी बहुत मस्त थी। इसलिए मैं ज़िंदगी और भी खुल के जीने लगा हूँ और भी खुश होके जीने लगा हूँ। और दोस्तों, इस सपने के बाद मैंने एक शेर लिखा इसके तुरंत बाद। तो वो शेर कुछ ऐसा है कि कश्मकश से भरा ये खंडर है, बाहर से सूखा सब बंजर है। कश्मकश से भरा ये खंडर है, बाहर से सूखा सब बंजर है। मोहब्बत, गुस्सा, पागलपंती और समझदारी, मोहब्बत, गुस्सा, पागलपंती और समझदारी, भाव और ज्ञान का तो पूरा समंदर है, पर जो भी है सब अंदर है। ज़रूरत आने पर सब निकलेगा बारी बारी। एक दिन ऐसा आएगा जब कामयाबी में ना तो ना सही, पर जनाजे के वक्त शामिल होगी दुनिया सारी। और अगली एक आखिरी मैं कविता सुनाना चाहता हूँ, और इस कविता का शीर्षक है तू बंदा कोई साधारण नहीं। भूल जा पिछला, बढ़ जा आगे, अब मन में किसी का बैर नहीं। खोल के बाहें अपना ले खुद को, तू बंदा कोई साधारण नहीं। अब युद्ध भूमि में उतर चुका तू, ना मरने मिटने का डर कोई। देख सारथी रूपी बैठा माधव, तो जीत ही होगी हार नहीं। अब युद्ध करना ही धर्म है तेरा, गीता का यह सार सही। भूल जा पिछला, बढ़ जा आगे, अब मन में किसी का बैर नहीं। खोल के बाहें अपना ले खुद को, तू बंदा कोई साधारण नहीं। थैंक यू सो मच। ये शेर सुनाऊंगी कि मुझे कश्मकश में रफ्ता रफ्ता रहना सिखा गया। मुझे कश्मकश में रफ्ता रफ्ता रहना सिखा गया। मुझे हल्का हल्का 2 घूंट पीना सिखा गया। मुझे कश्मकश में रफ्ता रफ्ता रहना सिखा गया। मुझे हल्का हल्का 2 घूंट पीना सिखा गया। मेरी ज़िंदगी से हर शख्स ज़र्रा ज़र्रा जाने वाला, मेरी ज़िंदगी से हर शख्स ज़र्रा ज़र्रा जाने वाला, मुझे कतरा कतरा ज़िंदगी जीना सिखा गया। शुक्रिया। एक मोहब्बत पे है, और मेरे फियांस भी आए हैं आज। पहली बार इवेंट में आए, वो पहला इवेंट है, पहली बार सुनेंगे भी लाइव। तो सारी हैरत है मेरी, सारी अदा तेरी है। सारी हैरत है मेरी, सारी अदा तेरी है। अल्फाज है मेरे, उसमें रंग की फ़िज़ा तेरी है। सारी हैरत है मेरी, सारी अदा तेरी है। अल्फाज है मेरे, उसमें रंग की फ़िज़ा तेरी है। और फूल भी खिलते हैं तेरे मेरे गुल सुनकर, और फूल भी खिलते हैं तेरे मेरे गुल सुनकर। शेर मेरा है मगर उनमें मोहब्बत की हवा तेरी है। शुक्रिया। तो एक पोयम है, छोटी सी है कि हाँ, सब हमको गिफ्ट करते हैं डायरी, मतलब लाइक डायरी जो लिखता है उनको बहुत आती होंगी डायरी गिफ्ट में। बट मैंने मेरी एक फ्रेंड को डायरी गिफ्ट की थी, और वो बेसिकली ओपन अप नहीं होती है जल्दी किसी से। तो मेरा उसको देने का जो मकसद था वो आपको पोयम में दिखेगा। क्या तुम्हें याद है मेरी दी हुई किताब? क्या तुम्हें याद है मेरी दी हुई किताब? अच्छा तुम उसमें अपने सारे एहसास लिखना। अच्छा तुम उसमें अपने सारे एहसास लिखना। अच्छा तुम उसमें अपने सारे जज्बात लिखना, जो दुनिया की भीड़ में किसी से ना कह सको। हाँ तुम उसमें ऐसी ही कोई अपनी बात लिखना। हाँ तुम उसमें ऐसी ही कोई अपनी बात लिखना। उसके इश्क में डूबी हुई तुम वो ज़ात लिखना। उसके इश्क में डूबी हुई तुम वो ज़ात लिखना। उसके दिल में ढलती हुई तुम वो शुरुआत लिखना।
बेहिसाब फिरते हो जो तुम अपने एहसास लेकर, कभी उस किताब में उसके भी एहसास का हिसाब लिखना। हाँ, तुम इसमें ऐसी ही कोई बात लिखना। हाँ, तुम उसमें अपने हर टूटे हुए ख्वाब लिखना, अपनी बेबसी, कमज़ोरी और हर ज़र्फ़ का सैलाब लिखना। ज़र्फ़ मतलब पर्सनालिटी। तो हाँ, तुम उसमें अपने हर टूटे हुए ख्वाब लिखना, अपनी बेबसी, कमज़ोरी और हर ज़र्फ़ का सैलाब लिखना, जो हर मुलाकात में मेरी आंखें पूछा करती है तुमसे। हाँ, तुम उसमें वही सवालों के जवाब लिखना। हाँ, तुम उसमें ऐसी ही कोई बात लिखना। ये जो तुम्हारी खामोशी हर पल जान लेती है, इसमें लफ्ज़ गुन कर तुम खुद पर बीती क़यामत लिखना। बेशक जो तुम आफ़ताब की गर्मी में किसी से ना कह सको, आफ़ताब मतलब सूरज, बेशक जो तुम आफ़ताब की गर्मी में किसी से ना कह सको, वो अधूरी कहानी का साथ अब तुम हर रात लिखना। हाँ, तुम उसमें ऐसी ही अपनी कोई बात लिखना। तो ये मैंने मेरे फियांस के लिए लिखी थी कि मैं बेवजह मुस्कुराने लगी हूँ, गुनगुनाने लगी हूँ। मैं बेवजह मुस्कुराने लगी हूँ, गुनगुनाने लगी हूँ। कुछ तो बात है मेरे निखार का, मेरी हथेली पर गहरा रंग देखकर देखो हर किसी को इल्म है उसके प्यार का। देखो हर किसी को इल्म है उसके प्यार का। ये जो सुकून है मेरी आँखों में, इसकी वजह उसकी सोहबत है। हाँ, मुझे उससे पहली और आखिरी मोहब्बत है। थोड़ा ठहरा, थोड़ा नरम, थोड़ा लहजे से वो शांत है, और जेन्युइनली है भी। थोड़ा ठहरा, थोड़ा नरम, थोड़ा लहजे से वो शांत है। उसकी माँ उसे चांद का टुकड़ा कहती है, लेकिन मेरे लिए तो वो पूरा चांद है। उसकी माँ उसे चांद का टुकड़ा कहती है, लेकिन मेरे लिए तो वो पूरा चांद है। ये जो सादगी है मेरे लहजे में, इसकी वजह उसकी सोहबत है। हाँ, मुझे उससे और सिर्फ उसी से पहली और आखिरी मोहब्बत है। ये एक लास्ट है, ये भी बेसिकली मोहब्बत पर ही है। तो मुझे उससे मोहब्बत करने से कोई रोक सकता है क्या? मुझे उससे मोहब्बत करने से कोई रोक सकता है क्या? भले ही मुझे उससे मोहब्बत करने से कोई रोक सकता है क्या? भला तुम बताओ, चांद की खूबसूरती कोई टोक सकता है क्या? मुझे उससे मोहब्बत करने से कोई रोक सकता है क्या? भला चांद की खूबसूरती को कोई टोक सकता है क्या? और नज़रों को भी इंतज़ार है उसकी नज़र के नजराने से, और नज़रों को भी इंतज़ार है उसकी नज़र के नजरानों से। उसका नाम आ जाए तो मेरी मुस्कुराहट कोई रोक सकता है क्या? उसका नाम आ जाए तो मेरी मुस्कुराहट कोई रोक सकता है क्या? ये हवा में ही कोई वायरस खो रहा है, ये हवा में ही कोई वायरस खो रहा है। मुझे धीरे धीरे इश्क हो रहा है, मुझे धीरे धीरे इश्क हो रहा है। हाँ, मुझे तुमसे ही इश्क हो रहा है। हर मोड़ पर तुम्हारी राय भी होंगी, हर मोड़ पर तुम्हारी राय भी होंगी, नोक झोंक के साथ लड़ाई भी होंगी। हर मोड़ पर तुम्हारी राय भी होंगी, नोक झोंक के साथ लड़ाई भी होंगी। हीर रांझा जैसी कहानी में तो तन्हाई है, हीर रांझा जैसी कहानी में तो तन्हाई है। देखना हमारे इश्क में तो गहराई ही होंगी, देखना हमारे इश्क में तो गहराई ही होंगी। गुलाब का रंग भी देखो मशहूर हो रहा है, मुझे धीरे धीरे इश्क हो रहा है। हाँ, मुझे तुमसे ही इश्क हो रहा है। उसके चेहरे पर महताब सा नूर भी है, देख लो आप, है। उसके चेहरे पर महताब सा नूर भी है, खूबसूरती के साथ वो थोड़ा दूर भी है। उसके चेहरे पर महताब सा नूर भी है, खूबसूरती के साथ वो थोड़ा दूर भी है। उसके साथ के साथ में मैंने एक बात देखी है, मुझे उसकी मोहब्बत का काफ़ी गुरूर भी है। मुझे उसकी मोहब्बत का काफ़ी गुरूर भी है। ज़िंदगी के हर पल हसीन हो रहे हैं, मुझे धीरे धीरे इश्क हो रहा है। हाँ, मुझे तुमसे ही इश्क हो रहा है। तो ये एक लास्ट शेर के साथ ख़त्म करूँगी कि अभी वो शेर मिल नहीं रहा और याद भी नहीं आ रहा, बताओ।
क्या आपको याद है क्या स्टार्टिंग की लाइन? वो वाला। हाँ, मेरी मोहब्बत का कमाल तो कुछ इस तरह है कि मैं हूँ चूर भी, मशहूर भी और फितूर भी, कि मैं हूँ चूर भी, मशहूर भी और फितूर भी, और उसकी मोहब्बत तो देखो चांद की तरह है, जिसमें है बेहद नूर भी, गुरूर भी और मुझसे दूर भी। शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर दिस। कोई बैठा था मेरे सामने, तो उसको मैं कह नहीं पाया ये बात, आज आपके माध्यम से शायद कह पाऊँ। तुम्हारी आंखों से ही हो रही थी मेरी सारी बातें, दर्द बता दिए सारे जितने भी तुम दिल में हो संभाले। एक आंख यादों से भरी थी, एक और थी शिकायतें, पानी के दो दो रंग मुझे पहली बार पता चले। भूला दो ना अब तुम भी ज़रा सा अपनी ओर से, हाथ छोड़ दो ना गुस्से और यादों की डोर से। हंसी बेघर हो के जब आस लगा रही हो तुमसे, क्यों रखा हुआ है तब गुस्से को किराए से अपने मन में। जितना रखा हुआ है सीने में भर के वजह बेवजह, निकालो सारा दर्द, सारी यादें, शिकायतें, सारा गुस्सा। कैद खाना बन जाएगा मन और ख़ुद को ही कैदी बना लोगी, अपने आप को औरों को तुम जब तक माफ़ी नहीं दोगी। जल्दी से जान लो इस बात को और गले लगाओ आज़ादी, अब और ना बिता देना ज़िंदगी दर्दों में बची आधी। क्यों जा रही हो तुम फिर से वहाँ अपने आप से लड़ने, जहाँ खो दिया था खुद को तुमने उन कांटों के बिहड़ में। नज़र आएगा खुशियाँ बेघर होके आस लगा रही है तुमसे, और तुमने रखा हुआ है दर्दों को किराए से अपने मन में। थोड़ी धर्म कर्म की बातें कर लेता हूँ। मैं ज़्यादा ज्ञानी पंडित तो हूँ नहीं, लेकिन अब तक के जो समझा है वो यहाँ पे लिखा है, आपके सामने पेश करता हूँ। कोई बात दिल पे मत लेना। दाढ़ी बढ़ाओ लंबी या माथे पे हो टीका, इंसानियत मिटती जिधर धर्म मिटता है सभी का। क्या फ़र्क है फिर हरे में कौन सा है केसरिया, रंग लाल ही बिखरता है बाकी बड़े फीका। बचानी है निशानी अगर अपने मज़हब की, तो ना ज़रूरत तुमको है गैरों को मिटाने की। बस उन नफ़रतों के दलालों को बैठे जो हर जगह, देरी है अपने अपने बाशिंदों को थोड़ा सा डांटने की। कुदरत से बड़ी नफ़रत है माफ़ी से बड़ा मिजाज, मानता अगर सोचिए तो है गलत तेरे हिसाब। दिमाग में हथियार और नुकीली है ज़ुबान, तो काहे का हिंदू है तू काहे का मुसलमान। ना शामिल होना कभी तुम उनके भीड़ को, ना समझते हो वो कलमा ना भगवान गीत को। ना कुचलते हो वो जिहादी ना ढोंगी ना आतंकी, ख़त्म कर दे बस मासूमियत अच्छाई और नेकी। काटने को मिलाओगे अगर खून पसीना, ना बचेगी दिवाली होली ना रमज़ान का महीना। करते रह जाओगे तुम यूं ही दंगे फसाद, माथे पे ना सिंदूर ना दिखेगा कभी हिजाब। रोते हैं सारे मज़हब मिलके चुपचाप से गुमनाम, बस दो ही नाम रह जाते हैं शैतान या हैवान। ना बचते हैं फिर पैगंबर ना राम ना हनुमान, जब कटता है कभी हिंदू या कोई मुसलमान। एक लास्ट पोएम आपसे शेयर करूंगा। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने कोरोना पे बहुत हेल्प किया था लोगों को, और कुछ उनको हेल्प कर नहीं पाए, और वो खुद को बहुत तकलीफ़ देते इस बात से। तो उनके लिए है कि वक्त छा गया था कुछ अलग मिजाज में, आईना बने खड़ा था कांच के लिबास में। शीश महल के रूप में सजाता हिचकिचाता ये जगत,
वक्त दुनिया को दिखाने आया जब इस दुनिया का सच। जो वक्त का सामना न कर सके वो सच से भागने लगे, कोई चीखने लगे कोई नकारने लगे, कुछ लड़ना जानते थे बैठे फिर भी आंखें मूंद के, ऐसे ज़मीर को जंग लगाए बेशरम भी खूब थे, पर सच को जीतने लगाए तुम जैसों ने ज़िंदगी भी दाव पे, ज़ख्म खुरेद के दिखाए सुर्ख गहरे घावों पे, जितने भी खुशी के हो सके पल पल समेट के, अपने सुकून का सौदा किया दुख दर्द खरीद के। तुम जैसों की रूहों में जगी थी इतनी सादगी कि ना आंसू बचे खुद के लिए ना दिल जज्बात भी, औरों में बांटा है सारा तोहफे समझ के, सच है ऊपर वाला ही भेजता होगा तुम जैसे मुस्तफ़े। तो वक्त ऐशो आराम का है या है मजबूरियों का, कदर करना हमेशा अपनी इन सारी खूबियों का। तुम पहुँचो या ना पहुँचो अपने जिस भी मुकाम में, पर कभी फ़र्क ना पड़ने देना अपने इस पहचान में। ना हथियार हो ना साथ ना मदद हो किसी की, बिना परवाह किए लड़ने चलो जो फिर भी मौत ज़िंदगी, और इन हालात में भी जो मुश्किलों की बुनियाद हिला दे, वक्त होता है उन्हीं का देखो उनके नेक इरादे। कहते कहते सच कहता हूँ जिसमें कोई भी शक नहीं, तुम्हारे दिल में भी खूबसूरती फैली है रुकी वो चेहरे तक नहीं। तो ऐसी दुनिया में कभी दुखी होने की तुम जैसों को इजाज़त नहीं, जहाँ दरिंदे भी हंस के जीते हैं जिन्हें जीने का भी हक नहीं। थैंक यू। अगेन मेरा नाम सिर्फ प्राची है, ठीक है। आई लव यू गाइज इफ़ यू नो मी। अगर आप मुझे नहीं जानते हो तो मेरी खुशियाँ जाए तेरे दामन में, तेरे दर्द मेरे नाम हो, जो लगे चोट तेरी किस्मत को तो मर्ज मेरे नाम हो। तुम्हें मिले अगर उधार की जिंदगी तो मेरी उम्र तुम्हें लग जाए, तुम्हारा कर्ज मेरे नाम हो। छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। नाम सिर्फ प्राची है लेकिन पार्टी का नाम है अवंतिका। तो अवंतिका पे दुनिया से छुपाया राज हूँ मैं, दब चुकी आवाज हूँ, गुमनाम हूँ मैं भीड़ में, मैं वक्त से नाराज हूँ। सबर की मैं सीमा हूँ, क्रोध सी अपार हूँ, नफरत के इस दौर में मैं अनकहा सा प्यार हूँ। खुशियों में अंजलि सी, दुख में अंतिका हूँ, हर हालात में अपनाऊंगी मैं अवंतिका हूँ। एक पोएम है जिसका नाम है तू ना सही पास मेरे मेरा अकेलापन है। तेरी मोहब्बत से उब चुका अब मन है, जख्मी हूँ मैं जख्मों से सना बदन है। फासलों की इतनी चाहत थी तेरी की नज़दीकी या दफन है, तू ना सही पास मेरे मेरा अकेलापन है। बड़ी मुद्दत के बाद पल के गालों से टकराई है, खुश हो दिल से लेकिन साथ तन्हाई है। उतरी थोड़ी खुमारी पर बचा थोड़ा दीवानापन है, तू ना सही पास मेरे मेरा अकेलापन है। लेकिन मैं इस प्यार मोहब्बत में काफ़ी अच्छी नहीं हूँ, ये मेरा मर्ज नहीं है। मैं तो दिल तोड़ने में, दर्द देने में, इसमें बिलीव करती हूँ। जितनी मोहब्बत बतूल ने दिखाई है ना जीजा जी के लिए, सब बदल जाए। ज़्यादा टूटे दिल वाले ही बैठे हैं यार, तो किसी को तो मोहब्बत दिखानी पड़ेगी। आप ऐसे ही खुश रहो, हमारी जीजा जी ब्लश करते करते ख़त्म हो जाए। एक बहुत फेमस शेर है मेरा कि तेरी छोटी मोहब्बत का सिलसिला आज ख़त्म होगा, हिसाबे हुस्न बेवफाई का हर सितम होगा। कि तुझे दे जो दिया दर्जा खुदा का, भूल गई कुत्तों से घी का हजम होगा। कि तुझे दे जो दिया दर्जा खुदा का, भूल गई कुत्तों से घी का हजम होगा। मेरा बाप चिल्ला उठता है हर चोट पे मेरी, उसे क्या पता तेरे इश्क में गहरा कितना जख्म होगा। उसे क्या पता तेरे इश्क में गहरा कितना जख्म होगा। तेरे सातों रंग देख लिए जालिम, शुक्र है सफ़ेद मेरा कफन होगा।
आज एक लड़के का दिल जीत के और किसी का दिल तोड़ के ही जाऊंगी। एक पोयम है, इशारा किया। बहुत सी चीज़ें इशारों में ही ख़त्म हो जाती है। हमने इशारों में शुरू की है। तुम्हें पता है तुम्हारे धोखे के बाद मौत सी लगती है मुझे ज़िंदगी, लेकिन जब लोगों ने पूछा तुम्हें महफूज जगह कौन सी लगती है, मैंने तुम्हारी बाहों की तरफ इशारा किया। बड़ा अजीब हो जाता है जब किसी रिश्ते में घुटन सी होने लगती है, पर जब हवा ने पूछा तुम्हें छू के गुजरता कौन है, मैंने तुम्हारी सांसों की तरफ इशारा किया। अनदेखा कर देते हो तुम मेरी सारी खूबसूरत चीज़ें, जैसे कोई खूबी ही ना हो मुझमें। लेकिन जब आंखों से पूछा तुम्हें प्यार से निहारता कौन है, मैंने तुम्हारी आंखों की तरफ इशारा किया। मिठास खत्म हो गई है जिंदगी से, बातों में अब कड़वाहट लगती है। लेकिन जब मैंने अल्फाजों से पूछा तुम्हें प्यार से चूमता कौन है, मैंने तुम्हारे होठों की तरफ इशारा किया। गलियां अनजान हो गई है जहां से गुजरते हुए जमाना गया। अनजान हो गई है शख्सियत मेरी, वो शख्स भी बेगाना हुआ। लेकिन जब सड़कों ने पूछा तुम्हारी मंजिल कहाँ से होके गुजरती है, मैंने तुम्हारी राहों की तरफ इशारा किया। बहुत नाराज हूं मैं खुद से, शायद तुमने बर्बाद कर दिया। छीन के तकदीर मेरी मुझे बेजार कर दिया। लेकिन जब किस्मत ने पूछा तुम्हारी लकीरें किससे जुड़ी है, मैंने तुम्हारे हाथों की तरफ इशारा किया। मुझे सबसे अच्छी शायरियाँ लगती है शराबियों की। एक अलग ही नशा होता है उनके हर अल्फाज में। मैं ऐसे लोग करते हैं ना कि लाइक पी के बोल रहा है यार ध्यान नहीं देंगे, हम तो बहुत प्यार से सुनते हैं। दूसरा पैक मैं बनाऊंगी, आप सुनाओ तो सही। लाइक अगर कभी ऐसा मुशायरा करना हो, कभी खाली बोतलें खड़ी हो और भरे गिलास हो, तो आप मुझे याद करें। मैं माहौल बहुत अच्छा बनाती हूँ और पैक भी। लाइक मैं ऐसा बड़ी प्यारी सी भोली सी बच्ची लगती हूँ, लेकिन बहुत अग्रेसिव हूँ मैं। नारी वारी शक्ति में भी लिख लेती हूँ कभी कभी। एक्चुअली मैं बहुत मुशायरा टाइप रेडी होना चाहती थी, एकदम सलवार कमीज झुमका बिंदिया, कोई देख के पागल ही हो जाए इतना। बट फिर मैंने ना पता नहीं कि सेक्सी सा ड्रेस पहन के, मतलब पागल तो अब भी होना ही है। तो लाइक वुमेन एम्पावरमेंट, लेट्स फोकस ऑन आवरसेल्व्स। तो स्त्री, ये शीर्षक है मेरी कविता का। अब सती ना सत्यवान के साथ जाएगी, ना सीता की अग्नि परीक्षा की नौबत आएगी। अयाज भाई आप नहीं उठना, सब बर्दाश्त है ये नहीं। अब सती ना सत्यवान के साथ जाएगी, ना सीता की अग्नि परीक्षा की नौबत आएगी। ना बनेगी औरत किसी पे बोझ, द्रौपदी अपनी लाज खुद बताएगी, खुद बचाएगी। ना बनेगी औरत किसी पे बोझ, द्रौपदी अपनी लाज खुद बचाएगी। स्त्री फूल है तो तलवार भी, स्त्री प्रेम है तो फटकार भी। जहाँ हवस के भूखों की शिकार बनी, ये लड़कियां है कुरुक्षेत्र में तलवार भी। माफ कर दे तो ईशा है, गुस्से में है काली की आग सनी। आदि शक्ति है स्त्री, बिना स्त्री के पुरुष बेजान है। मेरा पूरा ब्रह्मांड है वो जिसने दिया मुझे जीवन दान है। जब बात शेर व शायरी की आती है, नज़मों की आती है, तो हम सबसे पहले याद करते हैं नुसरत साहब को, और बड़े अव्वल दर्जे के फ़ैन हैं उनके। तो एक आखिरी सुनाऊंगी, इसका टाइटल है हमें जिंदा रहने तो ए हुस्न वालों। ना समझ है लोग सारे, पर ये समा शिकायत का नहीं।
तू गुनाह कर सरेआम बेवफा, मुझे हक शरारत का नहीं। इश्क़ बगावत का सिलसिला है, अब वक्त हिदायत का नहीं। तू समझ मेरे मालिक ये दौर शराफत का नहीं। तुम शफाकत के भूखे अब शिकस्त संभालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो। खतावार तुम सही, सज़ा का हक हमारा है। तुम कर लो थोड़ा सब्र, उसकी अदालत में मिलना दोबारा है। वहाँ झूठ नहीं बोलना, हर चीज़ का हिसाब है, लेकिन बिना दगाबाजी के तुम्हारा होता कहाँ गुजारा है। गुजारे में गुजार लो, इतनी गैरियत गिनवा लो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो। हद हो गई तो मोहब्बत ज़रूरत हो जाएगी, हद हो गई तो चाहत इबादत हो जाएगी। बेखबर हो तुम जज्बातों से, हद हो गई तो नफ़रत फितरत हो जाएगी। अब तुम हमारी हद का अंदाज़ा लगा लो, हमें ज़िंदा रहने दो है। अब तो कहते हो मैं कबूल हूँ, तो ये इंतज़ार कैसा, मुझे चुनने से ये इनकार कैसा। मेरी जान तुम तो ज़िंदगी थे ना हमारी, फिर प्यार जताओ मुश्किल इजहार कैसा। अगर साथ रह ना सको तो दिल से निकालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। हाय तुमसे शब्दों में हारे, हारे तुमसे चाहत में भी। तुम्हारे शहद से डरे डरे जहर की राहत से भी। तुम्हारे हुए तो दुनिया से लड़ेंगे, लड़ेंगे खिलाफे इनायत से भी। पर तुम हमसे कह गई हथियार डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। तुम्हारे बिन जिंदगी मौत से बदतर, जहर लगे दवा दवा लगे शौक से बदतर। तुम हो तो सब है वरना हकीकत मेरी लाश से बदतर। जाओगे छोड़ के तो वजूद मेरा साथ ले जाना, बावजूद सांसें लेता है जिस्म लाश से बदतर। खौफ भी कहे मेरे कदर से अब तो दफना लो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। खूबसूरत तो तुम्हारी आंखें हैं, मैं सवार के क्या करूं। तुम्हें पसंद हूँ मैं ऐसे ही, मैं सुधर के क्या करूं। बसाएंगे तुम्हारे दिल में अपना घर, तुम्हारे रास्ते से गुजर के क्या करूं। तुम भी गुजर के कभी दरवाजा खटखटा लो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। यही मैं आपसे अलविदा लेती हूँ, लेकिन जाते जाते एक चीज़ बताना चाहूँगी। मेरा एक बहुत अजीज़ दोस्त हुआ करता था, रोहन कश्मीर उर्फ अंग्रेज़, काफ़ी लोग जानते हैं यहाँ पे उन्हें। तो हमारे ये ना काफ़ी बातें होती थी उनसे। हमने हमारा रिश्ता बड़ा ऐसा अलग रखा था कि लोगों को पता ही नहीं था कि हम दोस्त भी हैं। बस हम उनके साथ थे और वो हमारे। तन्हाइयों में कभी वो हमें कॉल कर लेते थे, कभी हम ही अपनी बातें बता दिया करते थे। पर एक नंबर का गद्दार निकला, क्या धोखा दिया उसने मुझे। मैं 11 सितंबर को वेट करते रही उसके बर्थडे विश का कि आएगा मुझे विश करेगा, बोलेगा हैप्पी बर्थडे प्राची। आपका भी बर्थडे था उस दिन। काफ़ी वेट किया, दूसरे दिन खबर आई कि वो नहीं रहा। बर्थडे वाले दिन ही रात को वेट किया था बर्थडे विश का, सुबह सीधा जनाजे की खबर आई थी उसके। मैंने उससे आखिरी दफ़ा जब पूछा था, जब बात की थी, तब वो ज़रा से नशे में था। तो मैंने दूसरे दिन उससे बात करी। मैंने बोला क्या तुम्हें याद है कि तुमने नशे में मुझसे क्या कहा। तो उसने कहा सब याद है। मैं बोला अरे यार, मैं तो बोलने वाली थी कि तुमने नशे में कितनी दफ़ा मुझसे तुम्हारे प्यार का इजहार किया है। तो उसने बस इतना कह दिया
मेरे प्यार का इजहार करने के लिए मुझे कभी नशे में रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूछा क्यों, तो बताया नहीं, ये राज भी उसी के साथ चला गया। बट अब मैं उस चीज़ का जवाब नहीं ढूंढती, मैं बस उसको ढूंढते रहती हूँ। हर चीज़ में काफ़ी खाली करके गया है वो मुझे। पता नहीं कितना वक्त लगेगा इस जख्म को भरने में, हमारे दिल में उस दोस्त की जगह भरने में। बट एज अ ट्रिब्यूट मैं आपको उसकी एक पोएम के कुछ लाइन सुनाना चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ जो मुझे अपनी अनकही पंक्तियाँ सुना के गया था, मैं उसके कुछ कही हुई आप तक पहुँचा। पोएम का नाम है आखिरी मुलाकात। अब के बिछड़े तो सनम हिचकियाँ ना आएगी, इस वीरानी कमरे में अब तितलियाँ ना आएगी। कर गए मुमताज़ तो खैर है शाहजहाँ, इस मकबरे में अब खिड़कियाँ ना आएगी। 4 दीवारों में कैद है हमारी सांसें, इन 4 दीवारों में अब सिसकियाँ ना आएगी। जा चुके दूर बहुत दूर, अब के कबूतर ना आएंगे, चिट्ठियाँ ना आएगी। इन लाइन्स को हमेशा उसके मुंह से सुना है, आज खुद कहते हुए फील हो रहा है, लाइक कैसा लगता होगा उसको। मैं चाहती तो मिल लेती उससे, पूछ लेती कि क्या चल रहा है, क्या हाल है, पर उसने उतना वक्त नहीं दिया मुझे। हमने उसको उसके हाल पे छोड़ दिया और उसने बेहाल करके छोड़ दिया। बट स्टिल वी मिस हिम, वी लव हिम, है ना भाई? थैंक यू सो मच। तुल साथ में थी और सर भी थे। उसके बाद से अभी तक कहीं गए नहीं है, बहुत दिनों बाद किए हैं, तो थोड़ा सह लेना, थोड़े भड़े बैठे हैं। कुछ ऐसा है कि इजाज़त मिले तो चालू कर देते हैं। ज्योति फूलों से नाता न था, फूलों से नाता न था और गुलदान आए थे। फूलों से नाता न था, गुलदान आए थे, किसी रोज एक अज्ञानी को समझाने भगवान आए थे। और हो जाता सब फैसला उसी क्षण, हो जाता सब फैसला उसी क्षण, हाथ में सुदर्शन मुख में लिए ब्रह्मांड आए थे। थैंक यू। शेर सुना देता हूं। गांव गांव नजर नहीं आते, गांव गांव नजर नहीं आते, जंगल अब शहर नहीं आते। गांव गांव नजर नहीं आते, जंगल अब शहर नहीं आते। कतरा कतरा महफूज रखो, कतरा कतरा महफूज रखो, दहलीज तक समंदर नहीं आते। और सब आईने तोड़ दिए हमने, सब आईने तोड़ दिए हमने, मगर अब यहां पत्थर नहीं आते। शतरंज का खेल है केवल प्यादों का, शतरंज का खेल है केवल प्यादों का, घर से जो निकले लौट कर घर नहीं आते। और एक शेर है कि उम्मीद की एक लौ, उम्मीद की एक लौ जल रही है इस दिल के भीतर, उम्मीद की एक लौ जल रही है दिल के भीतर। बाहर क्यों खड़े हो, अंदर नहीं आते। मुस्कुराता रहूंगा, मुस्कुराता रहूंगा मेरी जान जब तक, मुस्कुराता रहूंगा मेरी जान जब तक, ये आंसू आंखों से उतर नहीं आते। एक शेर और है कि चांद भटकता है दिन के उजालों में, चांद भटकता है दिन के उजालों में, रात समझता है उसको ख्यालों में। चांद भटकता है दिन के उजालों में,
रात समझता है उसको ख्यालों में, और उसे पकड़कर बांध लो और रख लो तुम, उसे पकड़कर बांध लो और रख लो तुम, जूड़ा एक बनाकर अपने बालों में। कहाँ गया मेरे आसमान का वो टुकड़ा, कहाँ गया मेरे आसमान का वो टुकड़ा, जो सजता था तेरे कोमल से गालों में। एक शेर और है कि जिनके दिल के हर पन्ने पर इश्क रहा, जिनके दिल के हर पन्ने पर इश्क रहा, अब रखे हैं बोसीदा रिसालों में। एक शेर कि ये शेर मेरी गज़लों के खिलाफ लिखा है मैंने, ये शेर मेरी गज़लों के खिलाफ लिखा है मैंने, यहाँ इश्क में बेवफा भी मुआफ लिखा है मैंने। ये शेर मेरी गज़लों के खिलाफ लिखा है मैंने, यहाँ इश्क में बेवफा भी मुआफ लिखा है मैंने। अब चांद से मोहब्बत की मंजूरी कौन ले, अब चांद से मोहब्बत की मंजूरी कौन ले, मीर सी गज़लों सा इश्क साफ लिखा है मैंने। रातों की ख्वाहिश थी कि तुमसे मिलकर जाएं, रातों की ख्वाहिश थी कि तुमसे मिलकर जाएं, सांसों से पहले मौत पर एतराफ़ लिखा है मैंने। और हाँ मेरी नज़र में यही मोहब्बत है, और हाँ मेरी नज़र में यही मोहब्बत है, इख्तिलाफ भी है अगर तो इख्तिलाफ लिखा है मैंने। एक शेर और एक कविता सुना देता हूँ। चलना लंबे रास्तों पर, चलना लंबे रास्तों पर आंखों में कुछ ख्वाब लिए, चलना लंबे रास्तों पर आंखों में कुछ ख्वाब लिए, जैसे चलता है बचपन खुशबू की एक किताब लिए। धैर्य राह पर पैदल चलकर, धैर्य राह पर पैदल चलकर मंजिल हासिल होती है, जैसे धर्म पथ पर चलते रघुनंदन मर्यादा सैलाब लिए। बहते बहते पानी की धारा क्या कटती है तलवारों से, बहते पानी की धारा क्या कटती है तलवारों से, और सोना नहीं बनेगा जब तक तपना है अंगारों से। फिर निकलेगा कुंदन बनकर, फिर निकलेगा कुंदन बनकर, तब तक मेहनत जारी है। सब कुछ बदले दुनिया में लेकिन किस्मत पर मेहनत भारी है। सब कुछ बदले दुनिया में सब कुछ बदले दुनिया में लेकिन किस्मत पर मेहनत भारी है। और तुम राणा हो, तुम राणा हो, सिंह भगत हो, आज़ादी का ख्वाब लिए, जैसे चलता है बचपन खुशबू की एक किताब लिए। तारों सा चमकना ऐसा, तारों सा चमकना ऐसा, जब रात अंधेरी काली हो, सूर्य बन दमकना ऐसा, जैसे आग तुमसे निकाली हो। नाकामी मिलती है तो क्या चलना छोड़ देते हो, नाकामी मिलती है तो क्या चलना छोड़ देते हो, कुछ खामी मिलती है तो क्या लड़ना छोड़ देते हो। सरक सरक कर हासिल कर लो, सरक सरक कर हासिल कर लो, मंजिल से खिताब लिए, जैसे चलता है बचपन खुशबू की एक किताब लिए। और एक कविता की 4 पंक्तियां सुना देता हूँ। जब आप सब कुछ हासिल कर लेंगे, हर चीज़ हासिल कर लेंगे, तब मैं उसको लिखता हूँ कि तुम पर्वत हासिल कर लो जब, तुम पर्वत हासिल कर लो जब, मंजिल हाथों में भर लो जब, और कुछ थोड़ा और निखर लो जब, मन का बच्चा सो जाएगा। तुम पर्वत हासिल कर लो जब, मंजिल हाथों में भर लो जब, कुछ थोड़ा और निखर लो जब, मन का बच्चा सो जाएगा। शीतल सर हो जाएगा, तब शून्य शिखर हो जाएगा और पर्वत घर हो जाएगा। सबर है, फिजाओं का रुख है, सबा बेसबर है, फड़कते दिए से हवा बेखबर है। न नींदे है शब में, न सुबह सुकून है, ये साजिश है तेरी, ये तेरा असर है। अब फरिश्तों की खुशबू जहाँ से न गुजरे,
फरिश्तों की खुशबू जहाँ से ना गुजरे, वो तेरा चमन है, वो मेरी कब्र है। और ये एक है कि मेरे साए के कालेपन से है वाकिफ हर एक रास्ता, मैं हूँ हर अक्स में पोशीदा, हर एक शीशे में जाहिर हूँ। कहो उस नूर मंजिल से कि मेरी राह ना देखे, जहां मैं था वहां फिर हूँ, मैं अंधेरों का मुसाफिर हूँ। मेरी खामोशियां मेरे उफक के गीत गाती है, जहां बादल भी ना गरजे वहां बरसात लाती है। मैं वो शर हूँ कि जिसकी चाल को दुनिया छुपाती है, जिसे बस भूलने से कबल उसकी याद आती है। मैं फ़ानियत का आमिल हूँ, मैं मुर्शद हूँ, मैं आमिर हूँ, मैं अंधेरों का मुसाफिर हूँ। मैं उन नाचीज़ हवाओं की मजालों से नहीं डरता, मैं तूफ़ानों से नहीं गिरता, मैं मजदारों से नहीं उठता। मैं वो नहर के जो जाके किनारों से नहीं मिलता, मैं खुद ही खुद का सागर हूँ, मिजाज आब जाबिर हूँ। मैं अपनी डूबती कश्ती को तैराने में माहिर हूँ, मैं अंधेरों का मुसाफिर हूँ। इमाम कारवा को हो मुबारक उसका वो मनसब, नसब के काफिले हैं जो मुझे लगते हैं झूठे सब। फले गंदुम है मेरा जर, मुझे तोलेगा मेरा रब। सभी के साथ रहकर भी हुआ हूं मैं किसी का कब। निभा करना है गर मजहब, निभा करना है गर मजहब। मैं काफिर था, मैं काफिर हूं, मैं अंधेरों का मुसाफिर। और एक कहानी है, नॉट नेसेसरली शायरी है मगर एक कहानी जैसी है, मुसाफिरों की कहानी है। हम कितने करीब थे, हम कितने करीब थे अपने घरों से निकले हुए या निकाले हुए, आज़ाद उस पंछी की तरह जिसके पर काट कर उससे उसका घोंसला छीन लिया गया हो। हम कितने करीब थे ट्रेन में बैठे अपनी चप्पलें गोद में लिए हुए, मेरे कंधे पे सर रखे जैसे किसी खरगोश को आखिरकार सर टेकने के लिए सहारा मिला हो, मगर एक बेजान पत्थर के पुतले का। हम कितने करीब थे हमारी दूरियों में, नए शहर की शाहराहों पे जहाँ के रहने वालों ने एक दूसरे के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए और काफिलों ने मुसाफिरों का साथ छोड़ दिया। अंधेरों में फंसे हुए मुसाफिर, सफ़र से बंधे हुए मुसाफिर, सफ़र से थके हुए मुसाफिर, मुसाफिर जिन्होंने अपनी अपनी राह को पकड़ा मगर अपनी मंजिल का जिक्र ज़बां पर आने न दिया, जिन्होंने एक ही वादा किया कि दोबारा मिलने न मिलने का कोई वादा नहीं किया जाएगा। हम कितने करीब थे जब सदियों बाद हमने एक दूसरे के चेहरे देखे, एक ही सड़क की दो जानिब खड़े, आंखों की खिड़कियों से एक दूसरे को पहचानते हुए, रूह के हर जुज़ से हाथ मिलाते हुए, गले मिलते हुए। और उस दौरान हमारे बीच हर रंग और रूप के लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने कदमों को तेज़ तेज़ बढ़ाते हुए। जिस वक्त अगर हम चाहते तो दोनों जानिब से दो दो कदम बढ़ाते और अपनी बकिया बकाया उम्र में साथ हो जाते। वो दो कदम जो हमें एक कर देते, वो दो कदम जो हम दोनों ने ही नहीं लिए। आज़ाद होने रूह के पिंजरों से, आज़ाद होने आंखों की खिड़कियों से, रेल की पटरियों के आरिशों से, पत्थर के खरगोशों और उनकी साजिशों से, नए शहर की शाहराहों की चमकती धूप और धुंधलाती बारिशों से, आज़ाद रूह के पिंजरों से, आंखों की खिड़कियों से ओझल होते हुए, पल के झपकाते हर झपक में एक अलग ज़बां में अलविदा कहते हुए। अभी भी रास्ते की दो अलग जानिब खड़े, मगर अब एक भारी कदम का बोझ लेकर आगे बढ़ते हुए, अपनी अपनी राहों की तरफ जाते हुए, और एक दूसरे के जहन में बस एक ही सवाल करते हुए कि हम कितने करीब थे, हम कितने करीब थे। जिन्होंने रंगरेज भैया के बारे में बताया तो ये एक ये शेर है जो मैंने भी किसी के लिए लिखा था, तो मुझे वो ध्यान आया। कह देना अगर कोई कहे वो किसी कब्रिस्तान में रहती है, वो मेरी सांस में जिंदा है, वो मेरी जान में रहती है।
किसी को याद करने के लिए उसे भूलना होता है, उसे भूलना ये बात बस मेरे ध्यान में रहती है। किसी को याद करने के लिए उसे भूलना होता है, उसे भूलना ये बात बस मेरे ध्यान में रहती है। और खुदा ने मौत उसे देकर अकीदा मेरा बदला है, खुदा ने मौत उसे देकर अकीदा मेरा बदला है। उसकी आदतें फ़र्ज़ बनकर मेरे ईमान में रहती है। वो मेरी सांस में ज़िंदा है, वो मेरी जान में रहती है। यहाँ पे अगर सूफ़ी शायरी को एंजॉय करता हूँगा तो ये उनको बहुत पसंद आएगा। ये मैं ये मानता हूँ कि ये जो गज़ल है ये मेरी सबसे गहरी गज़ल है। काफ़ी ख़याल और काफ़ी एहसास गया है इसके पीछे कि हूँ मगर यहाँ नहीं हूँ, मैं जहाँ वहाँ नहीं हूँ मगर यहाँ नहीं हूँ, मैं जहाँ वहाँ नहीं हूँ। ढूंढता है तू मुझे यूँ, मैं कहाँ कहाँ नहीं हूँ। ढूंढता है तू मुझे यूँ, मैं कहाँ कहाँ नहीं हूँ। था हुआ रहूँगा होता, था हुआ रहूँगा होता, था नहीं तो हाँ नहीं हूँ। था हुआ रहूँगा होता, था नहीं तो हाँ नहीं हूँ। रह गया जहाँ रहा मैं, अब कहीं रहा नहीं हूँ। रह गया जहाँ रहा मैं, अब कहीं रहा नहीं हूँ। और उसी के आगे कि अब कहीं नहीं रहा मैं, अब कहीं रहा नहीं, अब कहीं नहीं रहा मैं, अब कहाँ रहा नहीं हूँ। अब कहीं रहा नहीं मैं, अब कहाँ रहा नहीं हूँ। और डूब गया नहीं हूँ पत्थर, डूब गया नहीं हूँ पत्थर, बह गया हवा नहीं हूँ। डूब गया नहीं हूँ पत्थर, बह गया हवा नहीं हूँ मगर यहाँ नहीं हूँ, मैं जहाँ वहाँ नहीं हूँ। एक और है कि भाइयों को डोली का बोझ सहना नहीं है, भाइयों को डोली का बोझ सहना नहीं है। और इस जिम्मेदारी पे ज़माने को कुछ कहना नहीं है। तेरा जो कुछ सामान है सब आंगन में निकाल के रखना, तेरा जो कुछ सामान है सब आंगन में निकाल के रखना। आज से तुझे इस घर में रहना नहीं है। और ये नाकामी उस बाप को 7 जन्मों तक सताएंगी, ये नाकामी उस बाप को 7 जन्मों तक सताएंगी कि बेटी दुल्हन भी बनी है तो सर पे गहना नहीं है। एक बेटी को बिहाने के लिए सारा घर बिक जाता है, एक बेटी को बिहाने के लिए सारा घर बिक जाता है। कुछ लोग ये कहना कुछ लोगों के लिए सिर्फ कहना नहीं है। और आखिरी शेर है कि ये पहला दिन था कि उसने इतना सब कुछ पहना था, ये पहला दिन था कि उसने इतना सब कुछ पहना था, ये पहली रात है कि उसने कुछ पहना नहीं। भाइयों को डोली का बोझ सहना नहीं है। और एक और भी है, ये भी थोड़ी डेंस गज़ल है कि एक नज़र मुख्तसर कर नज़र मुख्तसर, मुख्तसर मतलब होता है शॉर्ट, ब्रीफ। एक नज़र मुख्तसर कर नज़र मुख्तसर, दर पे हूँ खोल दे दिल का दर मुख्तसर। मेरे साथ बोलिएगा कि ए मेरे साखिया कर फिकर मुख्तसर, ए मेरे साखिया कर फिकर, जाम है 2 जहां और जिगर मुख्तसर, जाम है 2 जहां और जिगर मुख्तसर। हर घड़ी इंतहा हर पहर मुख्तसर, हर घड़ी इंतहा हर पहर मुख्तसर। सोज़े दिल बेपना दर्द सर मुख्तसर, पास आ चूम ले सांस भर मुख्तसर, पास आ चूम ले सांस भर मुख्तसर। जिंदगी है तवील तू मगर मुख्तसर, और कबले आगाज बंद ये बहर मुख्तसर, कबले आगाज बंद ये बहर मुख्तसर। बहर में घुल गया मेरा बर मुख्तसर। 2 और शेर है के
लिख रहा हूँ इसलिए कि ना लिखने से बेहतर है। लिख रहा हूँ इसलिए कि ना लिखने से बेहतर है किसी अजाब का दिखना तेरे दिखने से बेहतर है। और तवाइफों को शायरों पे बरतरी है क्योंकि तवाइफों को शायरों पे बरतरी है क्योंकि छुप के बिकना सरेआम बिकने से बेहतर है। तवाइफों को शायरों पे बरतरी है क्योंकि छुप के बिकना सरेआम बिकने से बेहतर है। एक और भी है, एक 4 पंक्तियाँ है करके कि ये बहकी शाम क्या है कोई मुझे बताए। ये बहकी शाम क्या है कोई मुझे बताए। मैं कौन हूँ मेरा नाम क्या है कोई मुझे बताए। और रोज़ चला आता है आईने में मायूसी लेकर। रोज़ चला आता है आईने में मायूसी लेकर। इस शख्स को मुझसे काम क्या है कोई मुझे बताए। मैं कौन हूँ मेरा नाम क्या है कोई मुझे बताए। और बस 2 कुछ और छोटी गज़लें हैं कि शाम है छत पे हूँ, एक मंज़र है आप इंजॉय कीजिएगा। शाम है छत पे हूँ हाथ में किताब है। प्याला भर अश्क है आँख भर शराब है। शाम है छत पे हूँ हाथ में किताब है। प्याला भर अश्क है आँख भर शराब है। आँख मैं ना आ सकूँ आँख से न जाए तू। गौर कीजिएगा ये शेर कि आँख मैं ना आ सकूँ आँख से न जाए तू। यूँ समझ लो कि मैं नींद हूँ तो ख्वाब है। और हिकमत रब है कि दो ज़खी सवाब है। खुल्द है मौत में ज़िंदगी अजाब है। और एक आखिरी के ये आखिरी गज़ल है। इससे मेरा भी रिसेंटली एक शो हुआ था, उसको मैंने ये गज़ल से ओपन किया था। मेरे को काफ़ी पसंद है गज़ल। अर्ज़ करूँ कि उसकी हर एक धड़कन पे मर के बताए। उसकी हर एक धड़कन पे मर के बताए। जो मैंने इश्क किया है कोई करके बताए। जो मैंने इश्क किया है कोई करके बताए। कोई बेतहाशा दुख दे कोई दिल तोड़े उसका। कोई बेतहाशा दुख दे कोई दिल तोड़े उसका। कोई तो हो कि उसकी आंखों में आंसू भर के बताए। और सदियों के गम गिनाने वो बैठ गया है। सदियों के गम गिनाने वो बैठ गया है। उसको जो मैंने मेरे पल भर के बताए। और भर के नमक हथेली फिरता है सुना है। भर के नमक हथेली फिरता है सुना है। दिल के जख्म जमाने को बहुत डर के बताए। उसकी हर एक धड़कन पे मर के बताए। जैसा मैंने इश्क किया है कोई करके बताए। थैंक यू सो मच।